Hello friends, I am your educator Mystery Kaur at Study Bar, the best learning platform. So today we are going to again continue with our chapter number 1 of biology, which is the fundamental unit of life, cell. We have learned many things about cell, like who found cell, how the cell was found, what are the components of a cell, what is cell made up of, and we have studied the three main components of the cell: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm. And today we'll be going more deep into the cell so that we can become a full master in cell. So without wasting our time, let's start. So, friends, firstly, I welcome you to Study Bar, the best learning platform. So, before starting this lecture, firstly, I recommend you to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the latest notifications, and also like and share this video so that more people can get help. If you have any doubt, you can write in the comment section below. So, now a new information for you all is that as your the first step is, now let me tell you the new information. The first is that now you will be finding study bar on Telegram as well. Now how can you find study bar? Let me tell you. So as your mobile phone is on, as you are seeing this video now, you have to just go on Play Store and just download Telegram. And they'll ask for your mobile number, so you can fill that all required informations, and then you can search for study bar. There will be symbol like this, searching symbol. So you can find their study bar, or you can use the link t.me/study bar. Okay, you can use this. So now that's exciting information for you all, that you will be finding study bar on Telegram as well, where you will be having important questions of all the chapters, PDFs of all the chapters. You can discuss your doubts with your teachers. That's all. And many things more you'll be getting there. So just go and download Telegram and subscribe the channel so that you can become a master and get higher score in your classes. Next, so now we know that we start our every class with a motivational thought. So now let's see what's the motivational thought for today. That is, education is the most powerful weapon which you use to change the world. So it is said by Nelson Mandela. Nelson Mandela says that education is the most powerful weapon which you use to change the world. कहते हैं education एक सबसे पावरफुल हथियार है, सबसे ताकतवर हथियार है जो आप इस दुनिया को बदलने के लिए यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज cell organelles. What are cell organelles? We will be discussing. And the next here is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. The next here is Golgi apparatus. What is, firstly we will discuss what are cell organelles, then we will discuss some types of cell organelles. I told you that we'll go deep into the cell organelles or the components of the cell. So firstly we'll be studying cell organelles, then we'll be going deep into some cell organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and then lysosomes. So these are the four objectives of this lecture, that are cell organelles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosomes. So now let's start our chapter. So the first is cell organelles. Cell organelles are subcellular structures which have their own form, own structure and function. सेल ऑर्गेनेलिस क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका अपना खुद की एक फॉर्म होती है, अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन. सब सेलुलर मीन्स सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, सेल के छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स. ओके, तो इनको स्मॉल सेलुलर सेल ऑर्गेनेलिस को
वी ऑल्सो टेल देम एज सेल डेब्रीज, सेल डेब्रीज भी बोला जाता है इन्हें। तो सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं और उनकी अपनी एक फॉर्म होती है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है और अपना ही एक डिफरेंट फंक्शन होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus and lysosomes, we are discussing three organelles. So not the three organelles are having the same structure, are not having the same function and are not having the same form. इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा. So that is why cell organelles are subcellular structures with different forms and with different functions. Cell organelles continue with their function even outside the cell if they are provided with the same environment as of the cytoplasm. कहते हैं जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सेल के बाहर भी काम कर लेती हैं. They also work out of the cell. How? अगर उनको in which condition they work? अगर उनको जैसा इन्वायरमेंट साइटोप्लाज्म में मिलता है, अगर उनको सेम इन्वायरमेंट सेल के बाहर मिल जाए, दे विल वर्क आउटसाइड द सेल ऑल्सो. इफ वी कीप देम इन वाटर, अगर हमने सोच लिया कि एक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले ली, वाटर में रख दी, और ऐसे नहीं होगा कि वो काम करने लग जाएगी वाटर में. नो, अगर उसको साइटोप्लाज्म जैसा सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो सेल के बाहर भी काम कर लेगी. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनियस कवरिंग के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज. मेम्ब्रेनियस कवरिंग के बेसिस पे 3 टाइप्स की सेल ऑर्गेनेलिज हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दे. So the first is double membrane bound. Double membrane bound जिनकी 2 membranes होती हैं, who have 2 membranes. अभी जैसे let me give you an example, mitochondria. Mitochondria क्या है? Double membrane bound है. It is double membrane bound. Double membrane bound है mitochondria. और उसके बाद let's see the second type. The second type is single membrane bound. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन हो. सच एन एग्जाम्पल इज लाइसोसोम, जो आज हम इस लेक्चर में करेंगे, लाइसोसोम्स. ठीक है. फर्स्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिनकी 2 मेम्ब्रेन्स हों, 2 मेम्ब्रेनियस कवरिंग्स हों. उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जिनकी 1 मेम्ब्रेनियस कवरिंग हो. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन हियर. द थर्ड वन हियर इज मेम्ब्रेनलेस, जिसकी मेम्ब्रेन हो ही ना. अब मेम्ब्रेनलेस कौन सी है? राइबोसोम्स. मेम्ब्रेनलेस है राइबोसोम्स. सो जो राइबोसोम्स हैं, हमने क्या पढ़ा था? आई थिंक सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस. यस. सो जो लास्ट वीडियो थी वो भी साइंस के ऊपर ही थी. सो इट्स लिंक आई एम गिविंग यू अ वर्क. ओके. सो मेम्ब्रेनलेस, अभी मेम्ब्रेनलेस होते हैं राइबोसोम्स. हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. साइंस के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. और उसमें हमने एक डिफरेंस किया था, एक फीचर किया था, एक कैरेक्टरिस्टिक किया था प्रोकैरियोट्स का, कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती. तो मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस की एग्जांपल हमने की राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, बट उनकी टाइप जो है वो डिफरेंट है. जो प्रोकैरियोट्स में है राइबोसोम्स वो होते हैं 70S टाइप के, बट जो राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में है वो होते हैं 80S. अभी इनके कुछ साइज में डिफरेंसेस होते हैं 70S एंड 80S. ओके. तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं बट टाइप में डिफरेंस होता है, बट दे आर प्रेजेंट. ओके. तो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज भी होती हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज एज वी हैव डिस्कस्ड: डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेनलेस. क्लियर? नेक्स्ट. So let's first discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a complex network of membrane-bound channels, tubules, and wait, its vesicles here, and vesicles. membrane bound. अभी जो endoplasmic reticulum है वो एक difficult सा structure है कि इनका membrane bound channels का, ठीक है, membranous channels का, tubules का and vesicles. Means we can say that it is made up of tubules, vesicles and membrane bound channels. और flat sacs का भी बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? cisternae. It is known as cisternae.
गॉट इट। उसके बाद इट हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा झिल्ली एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन, अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी दिया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट उसका मुझे कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं मिला, सो लेट मी टेल यू द आंसर हियर दैट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है हिंदी में, इट इज झिल्ली, झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा सेम ही रहता है और मेम्ब्रेन को बोलते हैं झिल्ली, ठीक है। तो in this video I am going to give you a question again that can come anytime, so be ready to get that answer and give me that answer in comment section below. If you want to be on the screen next time, your name will appear on the screen. I will be appreciating you in the next video, so just whenever the question will come, just answer. So इसका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेली है जिसका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मैमेलियन आरबीसीज और वी कैन से एथ्रोसाइट्स। अभी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर सेल्स में होती है प्रोकैरियोट्स को छोड़ के, और मैमेलियन एथ्रोसाइट्स या हम कह सकते हैं मैमेलियन आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं, व्हाट आर आरबीसी, दे आर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। एंड व्हाट आर डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। सो ये हर सेल्स में होती है प्रोकैरियोट्स को छोड़ के और मैमेलियन आरबीसीज को छोड़ के, या हम कह सकते हैं एथ्रोसाइट्स को छोड़ के। तो अभी ये प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होती, एज वी नो दैट membrane bound organelles are absent in prokaryotes. Clear about the topic? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोल देते हैं। क्लियर टिल हियर, समझ में आया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी बनी होती है, टिब्यूल्स की, वेसिकल्स की, सिस्टर्नेई की और मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स की, और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। उसके बाद ये हर सेल में होती है प्रोकैरियोट्स को छोड़ के और मैमेलियन आरबीसीज को छोड़ के। So let's move further. So next here I have shown you a zoomed out picture of endoplasmic reticulum. अभी इसको ऐसे ही समझने का कोई फायदा नहीं होगा. Let me give you a brief introduction about smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and ribosomes. तो अभी हम इसका सेल में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, एक आपको सेल दिया गया और ये किसके पास होती है, बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ ही होती है। यू कैन सी हियर, वेट, आर यू एबल टू सी नाउ? ये देखो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही है ये, है ना, न्यूक्लियस के साथ ही होती है। और न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप? न्यूक्लियर मैम्ब्रेन या आप न्यूक्लियर इन्वेलप कह लो, न्यूक्लियर की जो मैम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये स्लाइड है और जो ये इसकी अगली स्लाइड है, दीज आर टू इंटरकनेक्टेड। और अगली स्लाइड और इस स्लाइड को आपको अच्छी तरह से समझ आएगा दैट व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड व्हाट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, what are ribosomes, all that you will be clear about. So now let's move further. टाइप्स ऑफ ER, अभी वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, क्या थी वो, लेट्स डिस्कस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अभी देखो दो टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाय द प्रेजेंस और बाय द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की है, किसी एक के ऊपर राइबोसोम्स हैं, किसी एक के ऊपर नहीं है, बाय द प्रेजेंस और बाय द एब्सेंस। क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टू टाइप्स. द टू टाइप्स हियर आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनको हम शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोल देते हैं,
एंड वेयर एज हम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको SER बोल देते हैं। अभी ये तो हमें पता नहीं चला कि किसके ऊपर राइबोसोम्स है किसके ऊपर नहीं है। सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट। नाउ सी द फर्स्ट इज, वेट, लेट द कलर बी blue. Rough endoplasmic reticulum, it is characteristic by the presence of ribosomes. Rough endoplasmic reticulum के ऊपर ribosomes present होते हैं. It is characterized by the presence of ribosomes. Whereas in smooth endoplasmic reticulum, it does not has any ribosomes on it. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर? अभी हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर। सो हियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। सो हियर लेट द कलर बी ग्रीन। तो ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, द स्ट्रक्चर टिल हियर, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये राइबोसोम्स आपको यहाँ पे येलोइश कलर में इलिस्ट्रेट किए गए हैं, बट यहाँ पे आपको कोई भी येलो कलर दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। अभी अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसको छोड़ दो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये तो अभी देखो इसके ऊपर राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये किस में काम करती हैं? प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो अभी राइबोसोम्स के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस, बट आई हैव गिवन यू सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं एंड दे आर नोन एज द साइट्स ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो SER अभी समझ आया? सारा टॉपिक क्लियर हुआ? राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते। क्लियर? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो इट इज क्लियर? There are two types, rough endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum by the presence or absence of ribosomes. The two types are rough endoplasmic reticulum or the smooth endoplasmic reticulum, and the both are characteristic. First is characteristic by the presence of ribosomes and the second is devoid of ribosomes, means उसके ऊपर ribosomes नहीं present होते। Clear? Now let's move further. अभी हम कुछ और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस करते हैं राइबोसोम और RER और SER के बीच में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and it is rough endoplasmic. Okay, the first is ribosomes are absent. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस हमने पहले भी कर लिया। नेक्स्ट, SER हेल्प्स इन मेकिंग लिपिड्स। जो हमारी SER है वो हमें किस चीज़ को बनाने में हेल्प करती है? लिपिड्स बनाने में। वेयर एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? बिकॉज इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। नेक्स्ट, इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अभी जो SER है वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, वेयर एज the rough endoplasmic reticulum is made of cisternae, or we can say flat sacs. Okay, so जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टरनेई की बनी होती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। क्लियर ऑल अबाउट द डिफरेंस? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस हियर। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी दो पॉइंट्स तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस।
ओके और आप एक पॉइंट ये भी बना सकते हो दैट इट हेल्प्स इन membrane biogenesis. So now what is this? What is membrane? What is membrane biogenesis? Membrane biogenesis क्या होता है? membrane में जब भी कोई इंजरी आती है ना, whenever there is कोई इंजरी आती है या membrane की जब भी रिपेयर करनी होती है, when there is an injury on the membrane, when there is an injury या फिर membrane को रिपेयर की जरूरत होती है, तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स या लिपिड्स बनाती है वही यूज किए जाते हैं membrane की रिपेयर या membrane की इंजरी को दूर करने के लिए, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? membrane biogenesis. The lipids and proteins used in the repair of membrane of plasma membrane are synthesized by endoplasmic reticulum and this process is known as membrane biogenesis. Clear about the process? So now it gives internal support to cytoplasm. अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट, एक इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स. बहुत ड्रग्स और पॉइजन्स को ये डिटॉक्सिफाई करती है. डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस. अभी क्या डिटॉक्सिफिकेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह हेल्प करती है. एवरीवेयर इट हेल्प्स. either it is in the kidney, either it is in the liver, either it is in the brain. हर सेल, हर ब्रेन सेल्स में भी, किडनी सेल्स में भी, लिवर सेल्स में भी, हार्ट सेल्स में भी, हर जगह डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प होती है? नहीं, हर जगह हेल्प नहीं करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हर जगह डिटॉक्सिफिकेशन होती भी नहीं है. डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिवर सेल्स में. इट इज इन लिवर सेल्स इन द वर्टिब्रेट्स, और वहाँ पे जो भी ड्रग्स या जो भी पॉइजन्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनके रिमूवल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है. क्लियर? एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन membrane biogenesis. So now let's talk about Golgi apparatus. Golgi apparatus is an organelle which is formed of membrane bound sacs, tubules and vesicles. अभी इसका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिमिलर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स की बनी है, ट्यूब्यूल्स की बनी है और वेसिकल्स की. द apparatus lies near the nucleus. अभी जो ये गोल्गी apparatus है ये न्यूक्लियस के पास होती है. It lies near the nucleus. Golgi apparatus is single in animals but is in separate units in plants known as डिक्टोसोम्स. अभी जो गोल्गी apparatus है वो एक सिंगल यूनिट होती है. मीन्स इट इज सिंगल एज शोन इन द पिक्चर. ये सिंगल होती है किन में? प्लांट्स में. बट जो एनिमल्स हैं उनमें गोल्गी apparatus की सेपरेट यूनिट्स होती हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? डिक्टोसोम्स. दे आर नोन एज डिक्टोसोम्स. नेक्स्ट, द membrane bound sacs are thin and curved and are called cisternae. अभी जो membrane bound sacs हैं, जो membrane bound sacs हैं वो thin होते हैं, पतले होते हैं और थोड़े से curved होते हैं. They are somewhat curved और उन्हें क्या बोला जाता है? cisternae. ठीक है, और जो cisternae है ना उसकी जो बीच वाली जगह होती है, मीन्स think that it is a cisternae, जिसका ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है cisternae का, और जो ये बीच वाली जगह है, दिस स्पेस इज नोन एज ल्यूमन. इस जगह को बोला जाता है ल्यूमन. क्लियर? इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैमेलियन आर्बिसिस. हर यूकैरियोट में पाई जाती है एक्सेप्ट मैमेलियन आर्बिसिस, एक्सेप्ट मैमेलियन एथ्रोसाइट्स. क्लियर? गोल्गी apparatus किसकी बनी हुई है? membrane bound sacs की, जिन्हें हम cisternae बोल देते हैं, और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स की. जो ये गोल्गी apparatus है या जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये प्लांट्स में सेपरेट यूनिट्स में होती है, whereas in animals it is a single unit. और जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस के पास ही होता है, और
जो इसकी मेम्ब्रेन सैक्स हैं वो पतली होती हैं और थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं, और उन्हें क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी, एंड इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट मैमेलियन आर्बिसिस. Next, so here the question arises for you all, that is, the question is, wait, who found the Golgi complex? Who found the Golgi complex? Who found the Golgi apparatus या Golgi complex? किसने फाइंड किया था Golgi apparatus या Golgi complex को? Wait, who found the Golgi apparatus? And I want its answer in the comment section below. You can do the two things simultaneously. Just go and write in the comment section below and just start seeing this video. Do the two things simultaneously so that your time should not be wasted. So the person who will give the fastest answer या जिसका आंसर सबसे पहले मुझे मिल जाएगा, उसका अगली बार स्क्रीन पे नाम होगा. Either it's the lecture of science or any other lecture. So just do it fast and just give its answer. Okay, let me again tell you the question. The question is, who found the Golgi apparatus? Okay, now यहाँ पे मैंने एक आपको फिर से zoomed out structure दिया है Golgi apparatus का. So the first is secretory vesicles. अभी आपको आगे क्या आपको आगे functions में ये दिया होगा कि जो Golgi apparatus है ये सेक्रीशन में सबसे ज़्यादा इसका मेजर फंक्शन है, मेजर रोल है. ठीक है, दिस आर सिस्टर्नी. देखो कर्व्ड से स्ट्रक्चर, ये ना पतले पतले से सिस्टर्नी कर्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं. और ये है ल्यूमन. ल्यूमन आपको जैसे मैंने बताया था कि सिस्टर्नी की जो बीच वाली जगह है उसे बोलते हैं ल्यूमन. इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दिस इज द CIS फेज. CIS फेज क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनेली की एंडिंग हो रही होती है, where there is an ending of or cell debris or the cell organelle. So what is transphase here? What is transphase? Transphase होती है जहाँ से जो vesicles हैं आती हैं, from where the point where the vesicles come is known as transphase. अभी vesicles कहाँ से आती हैं? From where does the vesicles come? क्या Golgi apparatus की अपनी खुद की vesicles नहीं होती? No, it does not has any its own vesicles. इसी कारण ये कई टाइम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियन सिस्टम बना लेती है, बिकॉज इसको जो वेसिकल्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. क्लियर? तो अभी इसका सारा कुछ क्लियर हुआ. सिस्टर्नी आर थिन एंड कर्व्ड फ्लैटन सैक्स, एंड ल्यूमन जो सिस्टर्नी के बीच वाली जगह होती है. सेक्रेटरी वेसिकल्स जो सेक्रीशन में हेल्प करती हैं. ट्रांसफेस जहाँ से जो वेसिकल्स अंदर आती हैं. CIS फेस क्या होता है? जहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेली है या जो सेल डेब्री है उसकी एंडिंग हो रही होती है. क्लियर? नेक्स्ट, नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फंक्शंस. इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जब सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर हो रही होती है या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो रही है तो उसमें कौन हेल्प करता है? गोल्गी एपरेटस. लाइसोसोम्स आर मेड बाय गोल्गी एपरेटस. जो लाइसोसोम्स हैं वो भी कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस. लाइसोसोम्स आर मेड बाय गोल्गी एपरेटस. गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स बनाती है. इट हैज़ इट्स मेजर फंक्शन एज सेक्रीशन. इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? सेक्रीशन है. क्लियर? इट मेक्स कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर्स. ये क्या बनाती है? स्पेशल और कॉम्प्लेक्स जो स्पेशल शुगर्स होती हैं सेल में वो बनाती है, सच एज गैलेक्टोस. गैलेक्टोस गोल्गी एपरेटस बनाती है, इट्स स्पेशल शुगर. तो जो कॉम्प्लेक्स या जो स्पेशल शुगर्स होती हैं उनमें उनको भी बनाने में हेल्प करती है गोल्गी एपरेटस. नेक्स्ट आर लाइसोसोम्स. Lysosomes are small spherical bodies which are present only in animal cells. अभी जो लाइसोसोम्स हैं वो छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज़ हैं जो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होती हैं.
These are only present in animal cells. Means plant cells में नहीं होती. Yes, plant cells generally lack lysosome. Okay, they generally lack. These contain digestive enzymes for digestion, therefore they are known as digestive bags. जो lysosomes होते हैं उनमें क्या होते हैं, digestive enzymes होते हैं. They contain some digestive enzymes, और वो जो digestive enzymes हैं वो digestion में help करते हैं, और इसी कारण इन्हें क्या बोला जाता है, digestive bags. अभी आगे, in damaged cells lysosome burst to release enzymes and the enzymes eat the cellular component, therefore they are also known as the suicidal bags. अभी जो लाइसोसोम्स हैं, जो भी कोई डैमेज हो रहा हो सेल, तो उसमें लाइसोसोम क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है, और जो भी इसके अंदर एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो रिलीज हो जाते हैं जब ये बर्स्ट कर जाता है, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करना शुरू कर देते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग. क्लियर? So it is assumed that structure of lysosome, ये सारा आपका सेल का स्ट्रक्चर, अभी ये आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ये ER है, एंड ये आपका न्यूक्लियस है ना, इज न्यूक्लियस. अभी ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस. तो अभी जो स्ट्रक्चर्स हमने किए हैं वही करवा रही हूँ. अभी वैसे दो ही स्ट्रक्चर्स रह गए, एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स. तो लाइसोसोम्स कहाँ पे, राइबोसोम्स पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स कहाँ पे. दिस इज अ लाइसोसोम. ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, लाइसोसोम है. क्लियर? Next, now let's talk about the functions of lysosomes. They help in destruction of foreign particles. जो भी बाहर से पार्टिकल्स आते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन, उनकी डैमेजिंग में कौन हेल्प करते हैं, लाइसोसोम. जैसे वायरस या बैक्टीरिया अगर सेल के अंदर एंटर करता है तो उसकी डिस्ट्रक्शन में कौन हेल्प करते हैं, लाइसोसोम्स. दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन. नाउ व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? एक वर्ड होता है इंट्रासेलुलर, एक वर्ड होता है इंटरसेलुलर. दीज आर द टू वर्ड्स, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर. इंटरसेलुलर होता है सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी. इंट्रासेलुलर होता है सिर्फ सेल के अंदर. तो ये क्या करती है, जो भी सेल के अंदर है उसकी डाइजेशन में, मीन सेल की डाइजेशन में, सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स. द रिमूव डेड सेल ऑर्गेनेलिज, जो डेड सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको रिमूव कर देते हैं. द लार्वल ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स. जो भी लार्वल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना मेटामॉर्फोसिस के दौरान, तो उन्हें कौन कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम्स. लाइसोसोम डाइजेस्ट है. सो 4 टॉपिक्स थे, चारों टॉपिक्स क्लियर है. all 4 topics are all clear to you. So in the next video we will be discussing ribosomes, we'll be discussing plastids, and we will be discussing mitochondria. After that our chapter will be completed, and then what will we do, सो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा. हम एक रिकॉल करेंगे सारे चैप्टर का, एंड देन more and more people have to join in the Menti. Okay, then we'll conducting a Menti. So now I think that is enough for today. We should end the lecture. So bye bye, we'll meet in the next session.